Hello students, very good morning. My introduction, I am Rakesh Yadav and I am your maths teacher in your school Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 11th related chapter 2nd. It is relations and functions. We are doing exercise 2.3 of NCERT. We are on question 4th up to 3rd we have done. Question 4th is the function t which maps temperature. जो फंक्शन टी है वो क्या मैपिंग करके बताता है आपको टेम्परेचर की, किस में, डिग्री सेल्सियस में। और फिर आपको इसको क्या बताया उसने कि डिग्री सेल्सियस से उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे, इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये उसके बीच का रिलेशन बताया। सो इज़ डिफाइंड बाय, तो उसको कैसे डिफाइन किया है, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ये टी ऑफ सी जो है फंक्शन है, ये टेम्परेचर का सी के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर सी जो है फंक्शन, जैसे वाई जो था वो एक्स का फंक्शन होता है, ऐसे ही टी जो है वो सी का फंक्शन है। यहाँ पर इसको सी के फॉर्म में बताया गया है। तो फाइंड, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट केस में t0, सेकेंड केस में t28, थर्ड केस में t-10 और फोर्थ केस में वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पर सी की वैल्यू पूछी गई है। जब टी सी हमको दे रखा है, मीन्स फंक्शन ऑफ सी हमको दे रखा है, उसकी वैल्यू 212 दे रखी है, मतलब आप लास्ट वाले केस में हम इसकी जगह पर 212 रखेंगे, बाकी सब केसेस में सी की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। ये ही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट, लेट अस सी, वी हैव टू फाइंड t0. So first of all you have to write here what is Tc. Tc is equal to 9c/5 plus 32. It is given. This part is given to us, 9c/5 plus 32. Now we have to put in place of c 0. So T0 is equal to 9 into 0/5 plus 32. So T0 is equal to 0/5 plus 32, and finally T0 will become 0/5 is 0 because 9 into 0 is 0. 0 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 32. So the value of T0 is 32 here. So this first part is over here. Now see the second part. Here it is asked T28. So before this Tc is equal to what? 9c/5 plus 32. So now in place of c is equal to 28 will be there. So c is equal to 28. We have to put, on putting c is equal to 28. So T28 is equal to 9 into 28/5 plus 32, because here it is 28. So now T28 is equal to 9 8s are 72, carry on 7, 9 2s are 18 and 7 25. So 252/5 plus 32/1. Here we have to take LCM. Now T28 is equal to 5 will be the LCM. So 252 will be as it is, because when 5 is, this 5 is divided by 5, 1 will be the result. So 1 into 252 is 252, plus in table of 5 will come in 5 times. So 1 5s are 5, so 5 into 32. 5 into 32 means 5 2s are 10 and 5 3s are 15 and 1 16. So 32 5s are 160 we can say. So now this T28 will become 2 plus 0 is 2, 5 plus 6 is 11, 3 plus 1 is 4, 412/5. This is our second answer.
Now I will tell you about third and fourth. Now see our third question of question fourth. In third solution of third, given first of all what it is, TC is equal to 9C upon 5 plus 32. On putting C is equal to minus 10, because in third T minus 10 is asked, so we are putting C is equal to minus 10. Then this will become T minus 10 is equal to 9 into minus 10 upon 5 plus 32. So 5 2s are 10. Now this will be 9 into minus 2. So T minus 10 is equal to minus 18 plus 32. So T minus 10 is equal to 32 minus 18 we have to do. So 32 means 12 minus 8 is 4. Here it will become 2. So 2 minus 1 is 1. यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस लगा, इसलिए प्लस का साइन आएगा। और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एक जगह माइनस एक जगह प्लस होता है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 32 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आ गया। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। नाउ वी हैव टू डू फोर्थ वन। इट इज फोर्थ। हियर TC, what is given? First of all write given part. Given T of C is equal to 9C upon 5, this plus 32. So what we have to do, in place of T of C, (212) is there. So on putting T of C is equal to 212, means in place of this complete we have to put 212. So 212 is equal to 9C upon 5 plus 32. So we may transfer that 32 from RHS to LHS. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 32 को RHS से LHS में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको C की वैल्यू निकालनी है। देखिए वैल्यू ऑफ C we have to find. So 212 minus 32 is equal to 9C upon 5. So 9C upon 5 will be equal to 2 minus 2 is 0. Now 1 minus 3 not possible. 11 minus 3 that is 8, and here it will become 1 because this 1 is carried here. यहाँ से 1 ले लिया था अपन ने, तो 11 में से 3 गए थे तो 8 बचे थे, और फिर बाद में ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो 9C is equal to 180 into 5 upon 9. 9 2s are 18, 20. So C is equal to 180 into 5 upon 9. We have transposed this 5 in numerator. यहाँ से हमने 5 को ऊपर भेज दिया और 9 को नीचे। तो 9 से इसको कैंसिल किया तो 20 टाइम्स में 180 आता है 9 के टेबल में। तो C की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 0 0 एंड 5 2 10, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन फिफ्थ। हियर वी हैव टू फाइंड द रेंज ओनली, नॉट डोमेन। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हर फंक्शन के लिए अपने को रेंज निकालनी है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x दे रखा है, जहाँ पर x एलिमेंट है r का, मतलब x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रियल नंबर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे दी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होगा, मतलब इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, इससे ये समझ में आया हमको कि हमको केवल और केवल पॉजिटिव x के लिए ही इसकी रेंज निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेब्यूलर फॉर्म लिखते हैं इसका। टेब्यूलर फॉर्म आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। मतलब एक जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे और एक जगह f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे।
तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में ऐसा कुछ लिया, x की जगह पर 0.01, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकता हूँ मैं, 0 से बड़ा ही कुछ लेना है, तो 0.01 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो लेट अस सॉल्व इट इन रफ पार्ट। 2 - 3 इंटू 0.01, मैंने क्या किया 0.01 x की जगह पर उसमें पुट किया, तो ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 0.03। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.97। 200 में से 3 माइनस कर दिया मैंने, यहाँ 2.00 था तो 2.00 में से मैंने 0.03 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 माइनस यहाँ से 1 कैरी किया, तो 10 - 3 = 7, ये 9 हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1.97 इसका रिजल्ट हुआ। मतलब f(x) की वैल्यू क्या आ गई 1.97। फिर अगर क्योंकि मैंने पॉजिटिव लेना है मुझे, तो अब मान लीजिए मैंने 1 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3 इंटू -1, तो 2 प्लस 1 लिया तो 3 × 3, 2 - 3 दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला -1। अब अगर मैं इसकी जगह पर 2 लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मुझे निगेटिव तो लेना ही नहीं है जैसा कि मैंने बताया था, तो बिकॉज x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 से छोटा भी नहीं ले सकते और 0 भी नहीं ले सकते। तो सबसे छोटा मैंने लेने की कोशिश की यहाँ पर, हालांकि ये सबसे छोटा नहीं है, 0.01 भी ले सकते थे, मैंने 0.01 से कैलकुलेट करना चालू किया तो ये 1.97 आया, फिर 1 रखा तो -1 आया। अब यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 इंटू 2, 2 - 3 इंटू 2 दैट इज 2 - 6, तो 2 - 6 मुझे क्या मिला -4, तो यहाँ पर -4 आ गया। अब अगर मैंने मान लीजिए 3 लिखा तो 2 - 3 इंटू 3 मीन्स 2 - 9 दैट इज इक्वल टू -7, तो ये -7 मिला। मतलब मुझे यहाँ पर अगर और आगे बढ़ता जाऊँगा मैं तो सारी निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू मुझे कहाँ तक मिली 1.97 तक मिली। इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये वाला पार्ट ही मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज रिप्रेजेंट करता है इसमें, तो इस पार्ट को ही मुझे लिखना है, इसको तो मुझे डिस्कस ही नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि वी हैव टू फाइंड द रेंज ओनली। सो फॉर दिस मैंने इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करके बताया इसको, और ये देखा कि निगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है ये वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 2 से ऊपर नहीं जा रही है। तो इससे मुझे रेंज पता चली कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -∞ से लेकर के 2 तक, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 2 तो केवल एक ही केस में आएगा जब मैं x को 0 रख दूँ, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 मतलब 2 आएगा, तो 2 मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया, बिकॉज आई कांट इंक्लूड 2 हियर, दैट्स वाई आई विल हैव टू मेक हियर ओनली स्मॉल ब्रैकेट नॉट बिग ब्रैकेट, क्योंकि 2 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये -∞ से लेकर के 2 तक है, इसको 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, और -∞ इज लेस देन f(x) इज लेस देन 2, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो गया। तो ये इसकी रेंज हो गई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन 5 में। नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, it is f(x) means function of x is x² + 2, where x is a real number, and here also we have to find the range. So in solution let us mention tabular form. इसका टेबुलर फॉर्म बना के देखते हैं हम। यहाँ x जो है वो कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, ये ही इसकी विशेष बात है। तो ये x लिया, ये f(x) लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई छोटी वैल्यू ली, तो मैं तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकता हूँ।
तो मैंने मान लीजिए 0 लिया सबसे पहले, तो 0 लूँगा मैं, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2। अगर मैंने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो x 0 लेने पर f ऑफ 0 की वैल्यू 2 हो गई। अब मान लीजिए मैंने +1 लिया या -1 लिया, ये दोनों में साथ में क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज हियर इट इज x स्क्वायर, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और निगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ अगर मैं प्लस माइनस दोनों में 2 लेता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -2 × -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ पर मैं +-2 ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं 0 भी ले सकता था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मेरे पास ये बाउंडेशन थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। हियर देयर इज नो बाउंडेशन, वी कैन टेक एनी रियल नंबर। तो मैं x = 0 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 0 भी रियल नंबर है। अब मैंने यहाँ पर +-2 भी लेकर के देखूँगा मैं। पहले मैंने x की जगह पर +-1 लिया। सो फॉर दैट इफ x = +-1 देन व्हाट विल हैपन, f ऑफ +-1 इज इक्वल टू +-1 होल स्क्वायर +2, +1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, दोनों केसेस में 1 ही होगा, +2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू मेरे पास 3 आई। ऐसे ही मैंने +-2 लिया, तो x = +-2 लेने पर यहाँ क्या हो जाता है, f ऑफ +-2 दैट इज इक्वल टू +-2 स्क्वायर, ये +-2 स्क्वायर लिया +2, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मुझे 6 मिलेगा। सो वी कैन राइट हियर 6। नाउ इफ वी टेक +-3 तो क्या होता है, मान लीजिए +-3 लेता हूँ मैं, तो f +-3 की वैल्यू मुझे मिलेगी +-3 स्क्वायर +2 दैट इज इक्वल टू 9 + 2 मीन्स 11। तो ये 11 मिली। अब ऐसे ही मैं बहुत आगे तक भी जा सकता हूँ, फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ, +-4 +-5 +-6। तो ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, और ये प्लस का है तो ये प्लस के इन्फिनिटी तक जा सकता है। सबसे छोटी वैल्यू अगर इसमें कोई निकल के सामने आती है तो वो आती है 2, 0 रखने पर 2 आ रही है, और ये 2 इंक्लूड है। और उधर आगे चल करके मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं आगे कितनी भी वैल्यू रख सकता हूँ। आई कैन पुट एनी रियल नंबर बिकॉज x इज एनी रियल नंबर विच इज़ गिवन हियर इन आवर क्वेश्चन। तो कोई सा भी रियल नंबर पॉजिटिव या निगेटिव में आगे भी प्रोसीड करता हूँ तो उस केस में ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, और सबसे छोटी वैल्यू इसकी 2 है। मुझे f ऑफ x ही डिस्कस करना है। x इज़ नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज हियर डोमेन इज़ नॉट आस्क्ड, यहाँ पर डोमेन नहीं पूछा गया है, केवल रेंज पूछा गया है। तो ये f ऑफ x ही केवल रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब चूँकि यही रेंज को रिप्रेजेंट करेगा f ऑफ x की वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे रेंज ऑफ रिलेशन क्या मिली, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, हियर बिकॉज 2 इज इंक्लूडेड, ये 2 जो है ये इंक्लूडेड है। और जब भी आप -∞ या +∞ लिखते हैं तो उधर आप हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक तो जा तो सकते नहीं अपन, वहाँ पर जा कर के वो उसका एंड पॉइंट है, इसलिए इसको हम बड़े ब्रैकेट से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। -∞ से शुरू करते हैं तब भी छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं तब भी छोटा ब्रैकेट ही लगाते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ऑल्सो इन दिस इंटरवल फॉर्म, या फिर इसको हम कैसे बता सकते हैं, और 2 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इन्फिनिटी। हियर नॉट इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये 2 के बराबर भी है, 2 से बड़ा भी है, और इन्फिनिटी पर जाकर के एंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5th इज फिनिश्ड। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 5th, इट इज़ ओनली f ऑफ x इक्वल टू x। यहाँ पर f ऑफ x जो है वो x ही है, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब अगर मान लीजिए इसके सॉल्यूशन में भी मैं अगर टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो ये तो x और f ऑफ x सेम ही बनेगा टेबुलर फॉर्म में।
यहाँ अगर मैं x लिखता हूँ और यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ तो एफ ऑफ एक्स तो खुद ही x के बराबर है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने -1 लिया x की जगह पर तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी -1 आएगी। अगर मैं -2 लेता हूँ तो ये -2 आएगी। अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये 0 आएगी। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 1 आएगी। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 आएगी। इट मीन्स कि अगर कोई से भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर लेता हूँ मैं तो उस हर केस में वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर ही होती है। तो मतलब ये रियल नंबर x रियल नंबर है तो एफ ऑफ एक्स भी रियल नंबर के फॉर्म में ही आ रहा है। सो दिस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द रेंज एंड वी हैव टू मेंशन द रेंज ओनली। हमसे रेंज ही पूछी गई है और रेंज जो है वो एफ ऑफ एक्स से डिनोट होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से डिनोट होती है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ था ही नहीं, एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर था। तो जब x रियल नंबर है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी सारे ही रियल नंबर होंगे। सो इट मीन्स दैट वी कैन मेंशन हियर द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू r, ऑल रियल नंबर, where r is representing real number. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो रहेगी वो आर ही रहेगी, क्योंकि x जो था वो रियल नंबर था और एफ ऑफ एक्स में x ही लिखा हुआ था लोन। सो वो भी सारे रियल नंबर्स को ही डिनोट करता है। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हियर इट इज आर ओनली। सो दिस क्वेश्चन नंबर 3rd of 5th is now over and this chapter is also over, relations and functions. Thanks a lot for watching our video. Our channel's name is Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. You will have to subscribe it, share it and like it, and please do subscribe it.